Hi friends, welcome back. India asked to arrest and extradite Sheikh Hasina. ये मैं कह रही थी, मैंने भी न्यूज़ सुनी है, भैया उसको भेजो वापस, हमने उसके ऊपर फिर ट्रायल करने हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मुझे नजर आ रहा था कि अगर शेख हसीना इंडिया में रहेगी और एंटी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बांग्लादेश में आएगी तो वो इंडिया को फंसाने के लिए इस टाइप से वो करेगी कि भैया इसको वापस भेजो, इसने शेख हसीना ने तो बड़ी अट्रॉसिटीज की हुई है हमारे लोगों के साथ, हमें उसको कोर्ट में लाना है, आप एंटी बांग्लादेश हो रहे हो। तो वो अपने लोगों को फिर और उस वे में डाल के एंटी इंडिया करते जाएंगे और वही लग रहा है कि वो शुरुआत हो गई है। तो इंडिया भी इसलिए कोशिश कर रहा था कि भैया शेख हसीना जो है वो कहीं और देश में चली जाए जल्दी से जल्दी, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे लग रहा है अभी तक कोई वो कुछ हुआ ही नहीं है। तो चलो देखते हैं न्यूज़ के अब। ये भी बोल रहे यूएस वीजा कैंसल्ड। Exactly, where will she go? It's the ultimate reversal of fortune. Sheikh Hasina was once synonymous with Bangladesh. Today, she's a leader without a country. I know a lot of you have questions. Like, where is she now? She's no longer where will a leader. she go? And how long She's will India a person without a country. We'll try to answer some of them. First of all, where is Sheikh Hasina? India. She's still in India at an undisclosed location. Of course. She had landed at the Hindon Air Base on the outskirts of Delhi. Later, she was taken to a safe house. Question number 2, where will she go? Well, her options have certainly reduced. At first, Hasina was seeking asylum in the United Kingdom. Her niece is a British lawmaker from the Labour Party. She is also a secretary at the Treasury, so she's quite an influential leader. Yet, London is not welcoming Sheikh Hasina. Their officials say you cannot apply for asylum from outside the UK. You must seek asylum from the first safe country. In Okay, this then case, you that come is there. Then India, go there, a safe na? country for her. Her second option is the United States. Her son works as a lawyer there, Sheikh Hasina's son. Lawyer नहीं है. He's in the US. But since He's not a Hasina lawyer, has he's a resigned as Prime businessman. Minister, her official visa is not valid anymore. A third option is Finland. Again, she has family there. Hasina's nephew works in Helsinki and is married to a Finnish national. But their government is silent. बेटे के पास जाना चाहिए. Reports say that Hasina could ये also तो closest है. जो मेन वीजा वो तो बिजनेस वीजा वो तो होगा ना, डिप्लोमेटिक वीजा. It's all reports and speculation. But why not India? Why can't she remain in India? पहले भी तो रही है New इंडिया में. Delhi, after all. The Indian government hosted Hasina 50 years back when her family was killed. So why not now? Because the equation has changed. You see, there is public anger against Sheikh Hasina in Dhaka. So you can't be seen as helping or hosting her. It's also consistent with Indian policy. When the Afghan government fell, many officials sought asylum in India, but New Delhi said no. When Gotabaya Rajapaksa resigned in Sri Lanka, he too reached out to India. New Delhi reportedly said no. I guess Sheikh Hasina is no different in this case. And right now, this is the biggest concern for India. Bangladesh is moving ahead with government formation. Soon, India will have to resume business with Dhaka. How do you do that with Sheikh Hasina still in Delhi? Plus, there are calls to arrest her. Bangladesh's Supreme Court Bar Association has sent a message to India. Arrest Hasina and send her to Bangladesh. That's what they've said. Now, you can ignore the Bar Association. But what if the new government has the same demand? What if the Supreme Court उससे पहले इंडिया से बाहर भेज दो उसे. That's the first concern for India. The second concern is about Hindus in Bangladesh. We told you about this yesterday. Many temples and Hindu homes were targeted. But the chaos seems to have subsided now. We haven't seen fresh reports of violence against Hindus. So the focus now is on due process. Holding those mobs and rioters accountable, we're yet to see that.
Bangladeshi courts are handing out mass bail orders. More than 2,200 people got bail on Tuesday. Most of them are from the Jamaat and the BNP, the two main political groups now. So who answers for the destruction? Let me show you an example. This is what the Indira Gandhi Cultural Center in Dhaka looks like, completely torched now. Indira Gandhi का भी. It was inaugurated back in 2010. This center promoted cultural exchanges between India and Bangladesh. पूरा लूट के गए हैं देखो. ये मैंने कहीं देखा भी था, पाइपे पुपे खींच के, मतलब एक एक चीज घर की चोरी करके लेके जा रहे हैं. कैसेट्स लग रहे हैं वीडियो वाले पुराने. Take a look at this report. It says Pakistan's spy agency could be spreading anti-India sentiment in Bangladesh. Now, just to be clear, there is no evidence to back these claims. All you have is an allegation. जमात वाली बैठी है ना. Pakistan is not involved. Someone is. Just look at these social media posts. They claim that Indian spies are operating in Dhaka. That Indian soldiers are on the ground. Needless to say, this is all fake news. But it could create anti-India sentiments among the people there. And New Delhi must be wary of that. It must push back against this misinformation. It must also lobby for justice. India has respected the internal churn in Dhaka. There has been no undue criticism or meddling from New Delhi. So it's Dhaka's turn now to return. हाँ, हम भी तो बोल सकते थे जो हो रहा है गलत है. देख लिया, मैं बोल तो रही थी, मैंने पढ़ी है ये न्यूज़, तो वही न्यूज़ अब आ भी गई है कि ये बोल रहे हैं कि भैया उसको अरेस्ट करो और वापस भेजो. अब इसी वजह से इंडिया कोशिश कर रहा था कि जल्दी से जल्दी, जैसी शेख हसीना यहाँ लैंड हुई थी उसी टाइम वो कोशिश हो रही थी कि जल्दी से कोई भी एक कंट्री जहाँ पे वो रहना चाहती है वहाँ भेज दें. मेरे हिसाब से तो बेस्ट उनका ऑप्शन यूएस से होना चाहिए, क्योंकि बेटा है, क्लोजेस्ट रिलेशनशिप उनकी बेटे की है. जब कोई प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसको जो वीज़ा मिलता है वो डिप्लोमेटिक वीज़ा या उस लेवल का वीज़ा. वही कोई बात हो सकती है. जब आप उस पोजीशन में नहीं होते तो कैंसिल होता है, क्योंकि वो सिर्फ पोजीशन से टाइड होता है, वो दूसरा वीज़ा है. एक बंदे को नहीं मिला, वो पोजीशन को मिलता है कि जो भी उस कंट्री का लीडर है उसे बड़ा ज़बरदस्त वीज़ा मिलता है. दैट इज़ बिकॉज दैट पर्सन लीडर नहीं है तो वो हट जाता है, वो तो उसकी टर्म्स होती हैं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है. मोस्ट लाइकली जब सब कुछ शांत हो जाएगा, आई थिंक वो डेफिनेटली यूएस में जाएंगी, क्योंकि उनका लड़का है, उसका सन अप्लाई कर सकता है और उसका पेरेंट को लेके आ सकता है और पेरेंट वहाँ रह सकता है, फिर वो असाइलम अप्लाई कर सकता है. तो मेरे ख्याल से वो चैप्टर ओपन है, मगर अभी नहीं हो सकता, उसके लिए समय लगेगा. हाँ, पर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर यूके जाना चाहती हैं तो अगर यूके का लॉ है कि आपको उस कंट्री में होना चाहिए और उसके बाद आप अप्लाई करो, तो वो चली जाए, जो भी नीज जो भी है उसके पास चली जाए, और वहाँ वो तो लॉयर भी है और साथ में अभी ऐसा हो गया कि उनको पहले परमिशन मांगनी पड़ेगी कि हम लैंड करना चाहते हैं. वो नेक्स्ट स्टेप पूछे देखे ना कि वो करने के बाद फिर वो बोल सकते हैं कि अब मैं चाहिए. तो ये अप्लाई करें. ये अगर वो सोच रही हैं कि भैया क्योंकि मैं पीएम थी तो ये कंट्री अपना रूल चेंज करके मुझे कर दे, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा. वो अगर किसी और के साथ कभी ऐसा किया है तो अलग बात है, फिर बोल सकते हो कि तुमने इनके लिए किया तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते. देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई इंसान पहले प्रॉपर वीज़ा लेता है, टूरिस्ट वीज़ा लेता है, कोई वीज़ा लेता है, वहाँ जाता है, फिर अगर मान लीजिए टूरिस्ट वीज़ा 6 महीने का है तो 6 महीने के बाद जो है फिर असाइलम मांगता है. बट उसको पहले वहाँ लीगल मीन से आना पड़ेगा. अब ये भी चक्कर है, अगर कोई जाना चाहता है तो पहले वीज़ा चाहिए, उसके बिना कैसे जाएगा. तो वीजा अप्लाई कर ले गवर्नमेंट जल्दी टूरिस्ट वीजा अप्लाई करे, टूरिस्ट वीजा अप्रूव हो, टूरिस्ट वीजा जाए, फिर ओवर सब आई डोंट नो क्या इसमें लीगल एंगल्स है. मगर ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो थोड़ी हिचकिचा रही हैं क्योंकि एक्सेप्ट करने में, क्योंकि लोगों ने जो शोर मचाया था बांग्लादेश में उसकी वजह से. चलो देखते हैं, कुछ टाइम में पता चल जाएगा. क्योंकि इंडिया तो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंडिया में सेफ्टी भी कम होगी और उससे प्रॉब्लम ज़्यादा जनरेट होंगी, वर्सेस अगर मज़ा आ जाएगा अगर यूएसए चली जाए, क्योंकि बेटा भी वही है, बेटे से क्लोज कोई नहीं हो सकता. अपना बच्चा है वो उनका. तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.